Hello students. The question is, using van der Waals equation, calculate the constant A. When 2 moles of a gas confined in a 4-liter flask exert a pressure of 11 atmosphere at a temperature of 300 Kelvin, the value of B is 0.05 liter mole inverse. So using van der Waals equation, calculate the constant A. Here pressure 11 atm at temperature 300 Kelvin and the value of B is 0.05 liter mole inverse. So the options is here and let's check the answer. Van der Waals equation for n mole of gas is what? Van der Waals equation for n moles of gas is P plus A into n square by V square into V minus NB equal to nRT. This is the van der Waals equation for n mole of a gas. P plus A into n square by V square into V minus NB equal to nRT. nRT. Given. It's given V equal to 11. V equal to 4. V equal to 4. P equal to 11 atm 4 liter. P equal to 11 atm and T equal to temperature is equal to 300 Kelvin and B equal to 0.05 liter per mole and N equal to 2. Thus, substitute the value in van der Waals equation. 11 plus A into 2 square by 4 square. 4 minus 2 into 0.05. 0.05 equal to 2 into 0.082 into 300. Therefore constant A equal to 6.46 atm liter square mole inverse minus 2. This is the answer. So a constant A equal to 6.46. Option A is the correct answer. Thank you. Hello. So our question is, an evacuated glass vessel weighs 50 gram when empty and 148 gram when filled with a liquid of density 0.98 gram per ml and 50.5 when filled with an ideal gas at 760 mmHg at 300 Kelvin. We have to find the molar mass of that gas. Now it has been given that when the vessel is empty, then its weight is 50.0 gram. When the ideal gas is filled, then its total weight is 50.5. So from here, we can find the mass of ideal gas. So mass of ideal gas will be what? It will be 50.5 minus 50 gram. So on solving it, we get the mass as 0.5 gram. Now here, similarly, we can also find the mass of the liquid present in the vessel. The total weight of the vessel when filled with the liquid is 148 gram. So from here, what we can see that the mass of the liquid filled in the vessel will be 148 minus 50. So it will be 98 gram. So 98 gram of a liquid present in a vessel. So from here, we know that the density is equal to the mass by volume. So from here, we can find the value of the volume.
So it will be what? It will be mass upon density. Now we have calculated the mass of a liquid as 98 gram, and as a density it has been given 0.98 gram per ml. Here gram and gram got cancelled out, and we get 100 ml, or you can say that it will be 0.1 liter, since we know that 1 liter is equal to 1000 ml. Now we know that the ideal gas equation is equal to PV is equal to nRT, where P stands for pressure, V stands for volume, N stands for number of moles, R stands for universal gas constant, and T stands for temperature in Kelvin. And we know that number of moles is equal to given weight upon molar mass. And another important point to remember is that 760 mm of Hg, we can write it as 1 atm. Now putting all these values here, we get what? Pressure as 1 atm, we are having volume as 0.1 liter, and we have given the weight as 0.5 gram upon, we have to find molar mass, multiply the value of universal gas constant is 0.0821 liter atm per Kelvin per mole, and here we are having a temperature as 300 Kelvin. Now on solving it, we get the molar mass as 0.5 multiply 0.0821 multiply 300 upon, it will be 1 multiply 0.1. On solving it, we get the molar mass as 123.15 gram per mole. I repeat, the molar mass will be 123.15 gram per mole, which is matching with our third option. So I hope you got this concept. Thank you. क्वेश्चन में हमें दिया है कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, जिसमें क्लोरीन और यहाँ पे आएगा इक्विलिब्रियम विद 2Cl, ठीक है। ये अटेन हो रहा है 1200 डिग्री सेल्सियस पे। इसको डिटरमाइन किया गया है बाय मेजरिंग रेट ऑफ इफ्यूजन, ठीक है। तो ऑब्जर्व किया गया था कि 1.80 mmHg प्रेशर पे मिक्सचर इफ्यूज करता है 1.16 टाइम्स क्रिप्टन, ठीक है, सेम कंडीशंस पे। तो हमें फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल जो कि डिसोसिएट होंगे इन फॉर्म ऑफ एटम्स, अगर एटॉमिक वेट क्रिप्टन का 84 है तो वो क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम है 2 क्लोरीन, इक्विलिब्रियम विद 2Cl, ठीक है। टेम्परेचर है हमारा 1200 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 1.80 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो मिक्सचर है वो इफ्यूज कर रहा है, मतलब रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ क्रिप्टन, ये कितना है 1.16, ठीक है, अंडर सेम कंडीशंस। तो हमें फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल जो कि डिसोसिएट होंगे वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अप्लाई करेंगे, और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस के, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक है, उसके। अब यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ क्रिप्टन, that will be equal to under root of molecular mass of krypton upon molecular mass of mixture, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 1.16 इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ क्रिप्टन 83 हमें दिया हुआ है, यहाँ पे 83 एक्चुअली 84 दिया हुआ है तो उसको 84 ले लेंगे, वैसे 83.8 होता है, ये कितना दिया हुआ है हमें 84, ठीक है, अपॉन m। तो यहाँ से जब हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 62.45, ठीक है। तो हमारे पास मोलिकुलर मास आ गया कितना 62.45। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास था क्लोरीन जिससे हमें 2Cl मिल रहा था। तो सपोज जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो Cl की कुछ भी नहीं होगी,
इक्विलिब्रियम पे अगर ये 1 माइनस एक्स है तो ये कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है। तो टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 माइनस एक्स प्लस 2x, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करें, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, जो गिवन मास है वो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ये कितने हैं 1 प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से फाइंड किया। अब बात आती है मॉलिक्यूलर मास की, मॉलिक्यूलर मास भी हमें दिया हुआ है दैट इज 62.45। देन गिवन मास अगर हम देखें तो गिवन मास कैसे निकाला जाए, गिवन मास होगा यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है Cl प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा Cl की कॉन्सेंट्रेशन इनटू नंबर ऑफ या इसका एटॉमिक वेट 35.5, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। अगर गिवन मास कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एटम है तो एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मोल्स इनटू एटॉमिक मास प्लस, फिर अगर हम बात करें Cl2 की तो इसके मोल्स कितने हैं इनटू क्लोरीन का एटॉमिक मास, या यहाँ पे तो मॉलिक्यूल बन गया तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 71, दैट इज 35.5 इंटू 2, ठीक है। तो ये तो हमारा गिवन मास की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है मोल्स का उसको वापस अप्लाई करते हैं, तो given mass upon molecular mass is equal to number of moles, okay। given mass 2x into 35.5 plus 1 minus x into 71 upon total moles कितने हैं 1 plus x, ये किसके बराबर है molecular mass that is 62.45। तो यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और परसेंटेज फॉर्म में निकाल लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना अमाउंट कम हुआ मतलब कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं तो ये हो जाएगा सबसे पहले 71x प्लस 71 माइनस 71x अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 62.45, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 71 अपॉन 62.45 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो जाएगा, तो 71 डिवाइडेड बाय 62.45 बराबर आएगा 1.136 के इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो x कितना आ जाएगा 1.136 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0.136, और अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 13.6%, ओके। तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 14% हो जाएगा हमारा ये, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। थैंक यू।